Hello students, welcome back to our YouTube channel Empower Education, and this is Neha Sutar, your mathematics teacher. And students, today we are going to see some examples from 10th standard CBSE lesson trigonometry, introduction to trigonometry. तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम आज के सेशन में सॉल्व करने वाले. As you know, in previous sessions, we have seen what is trigonometry, how to find trigonometric ratios, how to find values for the different trigonometric ratios, and how to solve examples regarding that part. And also, we have seen complementary angles, then trigonometric ratios of complementary angles. So, all these part we have seen in the previous session. But last जो part है trigonometric identities का, ये last part है, मतलब लेकिन वो भी important part है. तो इससे related some questions we will see, some examples we will solve in this session. So in this session, part A1 मैंने लिखा है क्योंकि there are so many variety of examples given in your textbook. So some examples we will solve in this session and remaining examples we will solve in the next session. Okay. So let's start for the session trigonometric identity standard 10 CBSE. Okay. So सबसे पहले हम देखते हैं definitions क्या है, identity क्या है. So an equation is called an identity when it is true for all values of the variables involved. तो हमें पता है कि जब भी कोई इक्वेशन हमें दिया जाता है तब इक्वेशंस में वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं. सो जो कोई वेरिएबल्स प्रेजेंट है उस सभी के लिए अगर वो इक्वेशन ट्रू हो रहा है, मतलब सभी वैल्यूज के लिए अगर राइट साइड भी सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन का, सो उस इक्वेशन को हम कहेंगे आइडेंटिटी. ओके. So what is trigonometric identity then? An equation involving trigonometric ratios of an angle is called a trigonometric identity. It is true for all values of the angle or angles involved. So हमें पता है कि trigonometric ratios हम कैसे लिखते हैं, sin, cos, tan, देन cot, sec, cosec. तो इनके फॉर्म में जो कोई trigonometric identities है तो उसके लिए अगर जो कोई रेशियोज हम उसके लिए ले रहे हैं तो सभी रेशियोज के लिए उनके जो कोई वैल्यूज हम एंगल्स के वैल्यूज डाल के हमें मिलते हैं तो सभी वैल्यूज के लिए अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तभी हम वो इक्वेशन को क्या कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी. तो हम देखेंगे कि वन बाय वन कौन कौन से आइडेंटिटीज जो है हम यूज करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में और कौन कौन से आइडेंटिटीज जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं. नाउ हम बस आइडेंटिटीज देख लेंगे, हम उसका प्रूफ नहीं देखेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू सी एनी प्रूफ ऑफ एनी ऑफ द आइडेंटिटीज बिकॉज प्रूफ हमें ज्यादातर पूछा नहीं जाता क्वेश्चन पेपर में. बस वो कैसे अप्लाई करना है आइडेंटिटी, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करने, दैट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. And what is the restriction about the angles for the particular identity, that part also we are going to see. Okay, so see what are the trigonometric identities. बहुत सिंपल से आइडेंटिटीज है, ध्यान में रखने में भी बहुत दिक्कत नहीं आती, बहुत इजी वे में हम उसको ध्यान में रख सकते हैं. सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज sin square a plus cos square a equal to 1 where 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री. सो 0 टू 90 डिग्री के बीच में जो कोई एंगल्स है अगर a वैरी हो रहा है इनके बीच में तो आइडेंटिटी जो है वो है ट्रू. sin square a plus cos square a equal to 1. Now the next one is a 1 plus tan square a equal to sec square a. सो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि एंगल का जो वैल्यू है वो एक्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 0 लेस देन इक्वल टू a लेस देन 90 डिग्री. सो ये कंडीशन आपको याद में रखनी है जब आप ये आइडेंटिटीज यूज करते हो एग्जांपल सॉल्व करने में. Now the next one is 1 plus cot square a equal to cosec square a. So again one more restriction, restriction is there for the identity that is 0 जो है एंगल का वैल्यू एक्जैक्टली इक्वल टू 0 डिग्री नहीं होना चाहिए. सो 0 डिग्री लेस देन a लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज द कंडीशन for this identity. So all these three identities we will use to solve examples which are given in your exercise in this lesson regarding trigonometric identities. Okay, so let's solve some examples one by one. We will see some examples. So let's see. Okay, so first example is given. Express the trigonometric ratios sin a, sec a and tan a in terms of cot a. तो हमें पता है cot a क्या है, हमने अभी आइडेंटिटीज भी देख लिए है कि कैसे लिखना है. सो वन बाय वन वी विल सी हाउ टू एक्सप्रेस गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ cot a. सो सबसे पहले मैं tan a के लिए लिखूंगी. सो tan a हमें पता है tan हम कैसे लिख सकते हैं, tan a इक्वल टू 1 अपॉन cot a. ये तो हमें पता है कि tan जो है वो रेसिप्रोकल है cot का. सो सिंपल वे में ऐसे हम उसके लिए कॉट के फॉर्म में रेशियो लिख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन हम लिखेंगे सेक ए के लिए. तो हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है. एंड यहाँ पे जो है नंबर 1 में हमने लिखा है tan कैसे लिखते हैं हम कॉट के फॉर्म में, तो उसका यूज करके हम लिखेंगे. सो आई विल राइट वी नो 1 प्लस
tan square equal to sec square a. This implies sec square a equal to 1 plus tan square a. बस rearrange किया है terms को. Okay, so from equation 1 we can substitute value of tan a. So sec square a equal to 1 plus 1 upon cot square a. Reason I will mention from 1. Okay, so this implies अब sec a का वैल्यू फाइंड करना है. सो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो आई विल राइट देयरफॉर taking square root on both sides we get, so what we will get, sec a equal to under root 1 plus 1 upon cot square. आप इतना ही रख सकते हो, नहीं तो फिर से डिनोमिनेटर इक्वल करके स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म्स है, लेकिन कोई जरूरत नहीं, इतना ही आपने लिखा तो भी सफिशिएंट है. सो यहाँ पे हमने सेक को रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ कॉट. नाउ द लास्ट वन इज साइन ए. तो हमें आइडेंटिटी पता है कि जो कोसेक के फॉर्म में है, कॉट एंड कोसेक दोनों टर्म्स वहाँ पे प्रेजेंट है. सो आई विल राइट नेक्स्ट फॉर साइन ए. ओके, so I will write here, we know 1 plus cot square a equal to cosec square a. So I will go to the next slide to write next calculations. So what we have, 1 plus cot square a equal to cosec square a. So again I will rearrange the terms and I will take cosec square a to the left hand side, that is cosec square a equal to 1 plus cot square a. Okay, this implies if you will write if you will take square root, so I will write taking square root on both hand sides. Both sides we get cosec a equal to under root 1 plus cot square a. Okay, but we have to find value of sin a. तो sin a को कैसे लिखते हैं, in the form of cosec a. So sin a equal to 1 upon cosec a. So cosec a will be 1 upon sin a. So this implies 1 upon sin a equal to under root 1 plus cot square a, since cosec a equal to 1 upon sin a. Okay, so अब हम क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, हमें मिल जाएगा sin a equal to 1 upon under root 1 plus cot square a. And in this way we have shown or we have written all the terms sin a, sec a and tan a in the form of cot a. So this was the answer for all these trigonometric ratios. Okay, so I hope all of you understood this part. So we will go to the next question. So evaluate करना है हमें जो कुछ टर्म दिया है उन्होंने. So first of all हम जो टर्म कंसिडर करेंगे एंड उसका वैल्यू जो है हमें फाइंड करना. तो हमने वैल्यूज डाल के भी क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन यहाँ पे जो है पर्टिकुलर आइडेंटिटी यूज करके हमें सॉल्व करना है. तो स्टूडेंट जब भी आप ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप ध्यान में रखो कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, हमें एग्जैक्टली क्या यूज करना है. और ये जो है कब क्वेश्चन देखने के बाद इमीडिएटली जब आपको पता चलता है कि कैसे सॉल्व करना है, सो दैट यू कैन ओनली गेट फ्रॉम द प्रैक्टिस. प्रैक्टिस जब हम करेंगे तभी हमको ध्यान में रह सकता है कि कौन सा फॉर्मूला एग्जैक्ट यूज करना है, कैसे हमें आंसर फाइनल जो है वो फाइंड करना है. ओके, सो वी विल राइट द गिवन टर्म्स. सो आई विल राइट कंसीडर. ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत एक्चुअली इंटरेस्ट आता है, हमारा मेमोरी भी जो है वो शार्प रहता है, क्योंकि कंटिन्यूसली हम थिंकिंग करते रहते हैं कि क्या आएगा, कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है. सो आई एक्चुअली लाइक दिस लेसन वेरी मच, बहुत. और एक बार फॉर्मूले याद रह जाए तो सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है. सो अब हमें आइडेंटिटी यूज करना है, तो कैसे करेंगे, देखो हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 ये आइडेंटिटी यूज करना है. तो किसी एक टर्म में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, एक टर्म जो है
वो 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा इन इस फॉर्म में जो है वो एंगल रिप्रेजेंट करना है. सो मैं 63 जो फर्स्ट वाला टर्म है तो मैं उसको कैसे लिखूंगी? 63 कैन बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री and sin square 27 degree I will keep it as it is, I will write it as it is. and यहाँ पे भी 17 डिग्री जो है cos square तो उसके मैं रिप्रेजेंट करूंगी 90 माइनस 73 सो 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस cos square 73 degree. Sorry, yes we are right. Cos square 73 degree. Okay, now so next part में हमें मिल जाएगा यहाँ पे रीजन भी आप लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं लेकिन रीजन लिखने की कि क्या आपने सब्ट्रैक्शन करके लिखा है. सो दिस इज इक्वल टू सो साइन स्क्वायर जो है साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. हमने ये पार्ट भी देखा है पिछले, अगर आपने मेरे कुछ सेशंस देखे ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड तो ये पार्ट भी आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें वो फॉर्मूलाज मिलते हैं 90 माइनस थीटा के. ओके, सो वी विल राइट हियर कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन रिमेनिंग जो डिनोमिनेटर है उसके लिए हम लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. सो अगर स्क्वायर भी किया तो भी सेम ही वैल्यू रहती है स्टूडेंट्स. सो हमें मिलता है यहाँ पे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री. सो आई विल मेंशन हियर रीजन सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा एंड cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. ये फॉर्मूले याद रखने में कोई डिफिकल्टी नहीं है. आप क्या करो, फॉर्मूला याद रखने के लिए उसका लिस्ट सामने रख के उसको सिर्फ देखना या उसको फॉर्मूला कैसे लिखा है वो देखना, उससे फॉर्मूले लर्न नहीं होते, फॉर्मूले याद में नहीं रहते. तो आपको क्या करना है, हर एक फॉर्मूला जो है उससे रिलेटेड अगर आपने एग्जाम्पल सॉल्व किए तो डेफिनेटली वो फॉर्मूला आपको याद रहते हैं, उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको समझ में आता है. तो फॉर्मूला लर्न करने की, फॉर्मूले याद रखने की एक अच्छी सी आइडिया है कि आप उसको यूज करके देख लो कौन से एग्जाम्पल में आप उसको यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली वो फॉर्मूला अच्छे से याद रह सकता है. So I will go to the next slide students to write the answer for the next step. So हमारे पास ये है तो obviously हमें क्या मिल रहा है, मैं यहीं पे लिखती हूँ. तो cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री एंगल सेम है. सो हमें यूज करना है फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज करनी है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1. सो न्यूमरेटर में भी हमें 1 मिलेगा, डिनोमिनेटर में भी क्या मिलेगा, एंगल डिफरेंट है लेकिन दोनों जो टर्म्स प्रेजेंट है साइन और cos के उनका स्क्वायर है, एंगल सेम है तो वहां भी हमें मिल जाएगा 1. सो डायरेक्टली हमें फाइनल आंसर मिलता है 1. सो I will rough some part just to write the final answer. And also we have to mention the reason. Reason जो है वो mention करना important है ट्रिगोनोमेट्री में. जहाँ जहाँ जरूरी है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, कौन सी आइडेंटिटी यूज की है वो मेंशन करना important है. Since sin square a plus cos square इक्वल टू 1. और ये आदत डालनी चाहिए रीजन मेंशन करने की. उससे क्या होता है, जो कोई आपका पेपर चेक कर रहा होता है उसको भी आइडिया आ जाता है कि आपने अच्छे से सॉल्व किया है, आपने ये यूज किया है और आपका भी एक रिवीजन हो जाता है. फिर से आप फॉर्मूला लिखते हो तो फिर से उसका भी रिवीजन हो जाता है. सो देयरफॉर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos square 17 degree plus cos square 73 degree equal to 1. So this is the final answer. So हमने evaluate किया जो कोई term दिया था उसको. So I hope all of you understood this part very well. So now we will go to the next question, question number 3. Okay. So see what is the given. Choose the correct option and justify your choice. So यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है. इस टाइप के और क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं तो आप उसके लिए भी ट्राई करो. तो एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगी, उससे रिलेटेड जो और उससे सिमिलर जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करके देख सकते हो. तो सॉल्व करना है और उसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन में दिया है उसको सिलेक्ट करके और चूज करके आपको फाइनल आंसर लिखना है. बहुत ईजी पार्ट है. सो फर्स्ट आई विल राइट कंसिडर और गिवन पार्ट आई विल राइट कंसिडर sec a plus tan a into 1 minus sin a. ओके, तो देखते हैं इवैल्यूएट करके. तो क्या करना है अभी हमें, यहाँ पे दो ब्रैकेट्स दिए हैं तो दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है. एक ब्रैकेट के हर एक टर्म से दूसरे ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले sec a से मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे वाले ब्रैकेट को. सो हमें मिलता है sec a इंटू ब्रैकेट
1 माइनस साइन ए प्लस नेक्स्ट tan ए इंटू ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए। डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो सेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए, लेकिन स्टेप्स आपको समझ में आने चाहिए इसलिए मैंने ये लिखा है। सो क्या मिलता है देखो, सेक ए माइनस सेक ए इंटू साइन ए प्लस tan ए माइनस tan ए इंटू साइन ए। ओके, अब क्या करना है देखो, हमें जो है कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें कैसे लिखना है ये, तो सेक ए को हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉस, tan को लिखेंगे हम साइन अपॉन कॉस। सो देखते हैं कैसे आता है नेक्स्ट पार्ट। सो सेक ए इज 1 अपॉन कॉस ए माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमें 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए प्लस tan ए माइनस यहाँ पे मिलेगा साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। तो प्रैक्टिस से ये पार्ट आपको या समझ में आता है। जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने। और ये वाला ऐसा चैप्टर है कि आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिलते हैं अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की, तो मार्क्स दिलवाने वाला चैप्टर है ये। तो अब देखो हमें क्या मिलता है यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए माइनस, अब यहाँ पे मिलता है tan ए, अगर आपने प्रोडक्ट किया साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस tan ए, और यहाँ पे जो है हमें प्रोडक्ट करना है न्यूमरेटर का। सो हमें मिलता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ओके, सो यहाँ पे प्लस tan ए माइनस tan ए कैंसिल हो जाएगा। नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो हमारे पास क्या है, 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो अब डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर का हम सब्ट्रैक्शन ले लेंगे। सो लेट्स सी व्हाट वी विल गेट इन द नेक्स्ट स्टेप। सो वी विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आई विल अगेन राइट द लास्ट स्टेप। सो कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, अब क्या है न्यूमरेटर्स का जो है सब्ट्रैक्शन हम ले सकते हैं यहाँ पे। सो लास्ट स्टेप में यहाँ पे भी यहाँ थोड़ी जगह कम है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे रीजन जो है वो मेंशन करना है। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सो सिंस सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए एंड tan ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, आपको यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट बना के आप आपके नोटबुक में ऐसा आंसर लिख सकते हो। यू नो हाउ टू राइट इट, आपको पता है सब अच्छे से। ओके, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, एज यू नो फ्रॉम द आइडेंटिटी। सो रीजन आई विल राइट सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। सब क्या मिल जाएगा यहाँ पे, कॉस ए यहाँ पे स्क्वायर और ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। विल गेट द फाइनल आंसर एज कॉस ए। सो यहाँ पे आंसर दिया है, सो आप यहाँ पे लिखोगे डी। सो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे कॉस ए। ओके, सो ये वाले क्वेश्चन जो है इस टाइप के आप सॉल्व करके देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। अब क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड दिया है, राइट हैंड साइड दिया है, तो आपको प्रूव करना है कि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे जो है आप लेफ्ट हैंड साइड अलग लेके सॉल्व कर सकते हो, राइट हैंड साइड अलग लेके सॉल्व कर सकते हो, देन दोनों को इक्वल दिखा सकते हो। समटाइम्स लेफ्ट हैंड साइड आप कंसिडर करके उसको सॉल्व करते करते आपको राइट हैंड साइड भी मिल जाता है। कभी कभी राइट हैंड साइड इजी होता है तो उसको कंसिडर करके आप लेफ्ट हैंड साइड तक भी आ सकते हो। इट इज अप टू यू कि आपको कैसे सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन। ओके, सो प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो एक्यूट एंगल से मतलब उनका जो मेजर है वो लेस देन 90 डिग्री है एंड 0 से ऑब्वियसली बड़ा होगा। सो देखते हैं ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सो आई विल राइट गिवन कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और आई विल जस्ट राइट कंसीडर, मैं नंबर 1 लिखती हूँ ताकि जब हम फाइनल आंसर फाइंड करें तो उसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 LHS इक्वल टू RHS। इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मैं इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो आई विल गिव नंबर 1। ओके, सो नाउ कंसीडर LHS। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए LHS कंसीडर करेंगे और उसको सॉल्व करते करते हम जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ। सो कंसीडर LHS इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अब सिंपली हमें इसका स्क्वायर करना है। वी नो द फॉर्मूला a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर इज
a square minus 2ab plus b square. So with the help of that formula you have to solve this square or solve this bracket. So what we will get, cosec square theta minus 2 times cosec theta into cot theta plus cot square theta. I will write the reason, a minus b bracket square since a minus b bracket square equal to what we will get, a square minus 2ab plus b square. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, ये जो टर्म्स हमारे पास है तो कोसेक को हम लिखेंगे साइन के फॉर्म में एंड कॉट को हम लिखेंगे साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में. सो हाउ वी विल राइट, so I will go to the next slide. I will just consider what are the terms in the last step. Cosec square theta. So again I will write it, cosec square theta minus 2 times cosec theta into cos theta plus cot square theta. थोड़ी जगह ज़्यादा लगती है जब हम ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि टर्म्स अगर ज़्यादा हो और तो ओके. सो कोसेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स, यहाँ पे जो है हमें मिलेगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन सॉरी कॉट इज कॉस अपॉन साइन, सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा अगेन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. ओके, रीजन हमें मेंशन करने हैं यहाँ पे, since cosec theta equal to 1 upon sin theta, so cosec square theta is 1 upon sin square theta, and हमें क्या लिखना है यहाँ पे, cot theta equal to sin cos theta upon sin theta. ओके, सो देखो अब हमें क्या, सभी अगर डिनोमिनेटर्स अगर आपने देख लिए हर एक टर्म में, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इनटू साइन थीटा मींस साइन स्क्वायर थीटा, and again in the last term there is a sin square theta. So now denominators are equal, so you can add the terms which are present in the numerator. So see, अब हमें क्या करना है, सो क्या रहते हैं देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 टाइम्स cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. इन द डिनोमिनेटर वी विल गेट sin स्क्वायर थीटा. अब देखो अगर न्यूमरेटर अगर आपने ऑब्जर्व किया, सो इट इज अ स्क्वायर ऑफ 1 माइनस cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, 1 माइनस आपने आपको फॉर्मूला पता है, अभी हमने देख लिया कि a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे, सो उससे हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर का ये जो फॉर्मूला है, और यहाँ पे हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा. सो रीजन आई विल मेंशन, सिंस a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम ही फॉर्मूला है. नाउ साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है. सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. सो 1 माइनस cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ओके, बस क्या किया, cos को शिफ्ट किया राइट साइड पे, देखो साइन स्क्वायर थीटा हमें मिल गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. अगेन आई विल रफ सम पार्ट. अगर आपने देख लिया है प्रीवियस स्टेप्स हमने कैसे लिखे हैं, आपको भी अच्छे से आते होंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बस जस्ट समझ लो कि हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं. अगर जिनको नहीं आते तो उनको भी हेल्प हो जाएगा. एम आई राइट? ओके, सो अब लास्ट स्टेप बचा इस आंसर का. सो इसके बाद हमें इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है. सो दैट पार्ट वी विल गेट इन द नेक्स्ट. ओके, सो अब हमें क्या करना है, अब स्क्वायर दिया है, देखो प्रीवियस टर्म में क्या मिल गया, 1 माइनस cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा. स्क्वायर है तो एक टर्म जो है हम दो बार लिख सकते हैं, यू नो. सो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, a प्लस b in first bracket and into another bracket a minus b. So 1 minus cos square theta means 1 square minus cos square theta. So उसको हम लिख सकते हैं 1 minus cos theta into in first bracket and in another bracket 1 plus cos theta. So देखो 1 minus cos theta 1 minus cos theta यहाँ पे cancel हो गया. So reason again I will mention, a square since a square minus b square equal to a plus b into a minus b. Okay.
So what we will get? 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, and this is nothing but what? This is the RHS. Okay, see यहाँ पे वही हमें प्रूव करना था जो हमने प्रूव किया. So it is RHS. So therefore it is the identity जो उन्होंने दिया है वो आइडेंटिटी है, क्योंकि दोनों साइड जो है हमने प्रूव किए और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो देयरफॉर हमें मिलता है देयरफॉर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस cos theta upon 1 plus cos theta. Hence proved. Okay, so in this way we have solved this question also. Now we will go to the next question. Okay, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है. तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, इसके आगे जो क्वेश्चन है वो हम लेंगे. ओके, जो बीच में अगर कुछ क्वेश्चंस बचे हैं आपके प्रैक्टिस एक्सरसाइज में तो वो आप होमवर्क के लिए सॉल्व करो. उनमें भी अगर कुछ क्वेरी है तो मुझे आप लिख के भेज दो. अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. ओके, सो नाउ यहाँ पे उन्होंने एक हिंट दिया है, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली. तो कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए अगर हिंट दिया है तो वो हिंट यूज करके सॉल्व करो, क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा और आपका आंसर जो है वो कुछ फ्यू मिनट्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा. सो I will consider LHS first, then RHS, and let's see how to get the final answer or how to show they are equal. So I will write first given. I just consider 1 plus sec A upon sec A equal to sin square A upon 1 minus cos A. बहुत easy question है ये भी students. I will write number 1. Sorry. So consider LHS. LHS separate consider करना है and RHS separate. LHS equal to, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, consider LHS equal to क्या है LHS हमारे पास 1 plus sec A upon sec A. अब क्या करना है, sec A को हम कैसे लिख सकते हैं, sec A means 1 upon cos A. So that is equal to 1 plus 1 upon cos A upon 1 upon cos A. So यहाँ पे क्या किया मैंने, since sec A equal to 1 upon cos A. Okay, so that is equal to, अब क्या करना है, न्यूमरेटर को पहले सिंप्लीफाई करके लेते हैं डिनोमिनेटर से इक्वल करके. सो यहाँ पे मिलेगा cos A upon cos A plus 1 upon cos A and again whole divided by 1 upon cos A. Okay. So देखो क्या मिलेगा अब यहाँ पे, ओके, सो दैट इज इक्वल टू, हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं न्यूमरेटर में ही. मतलब देखो क्या मिलेगा, cos A plus 1 अपॉन cos A एंड अगेन होल डिवाइडेड बाय है 1 अपॉन cos A. तो क्या करना है, इसको लेना है ऊपर. सो इसको क्या करेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. सो क्या मिलेगा, cos A plus 1 अपॉन cos A. ये जब ऊपर आएगा तो वो हो जाएगा इंटू cos A अपॉन 1. सो ये cos A कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया cos A plus 1 और यू कैन राइट इट एज 1 plus cos A. सो आई विल राइट हियर नंबर 2. नंबर 1 हमने जो गिवन पार्ट था उसके लिए लिखा था. सो नंबर 2 अब हम करेंगे RHS कंसिडर और उसके लिए देखते हैं कि क्या आता है आंसर. सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ. साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए में लेना है. सो नाउ आई विल राइट कंसिडर RHS इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. ओके, तो साइन को भी आप हमें लेना है इन द फॉर्म ऑफ कॉस विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी. सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. रीजन लिखती हूँ यहाँ पे, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1. सो दैट इज इक्वल टू, अब हमें लिखना है न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा. सो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए.
होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। ओके, ब्रैकेट डाला हमने तो हमें समझ में आता है कि कौन से टर्म से, और कंफ्यूजन भी नहीं होता। सो ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा इस पूरे टर्म के साथ। यहाँ पे मैं रीजन लिखती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एम आई राइट? ओके, सो हमें मिल गया 1 प्लस कॉस ए। सो एडिशन इज कम्यूटेटिव, सो 1 प्लस कॉस ए इज नथिंग बट कॉस ए प्लस 1. I will give number 3. So now if you will observe equation number 2 and 3, देखो यहाँ पे भी हमें मिल गया cos a plus 1. इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 3 पे भी मिल गया cos a plus 1. So therefore from 2 and 3 we can write LHS equal to RHS. So इक्वेशन 1 जो हमने लिखा था, so वो true है, वो आइडेंटिटी है. So therefore from 2 and 3 we get 1 plus sec a upon sec a equal to sin square a upon 1 minus cos a. Am I right? Just let me check. Yes, we are right. So hence proved. और हमने शो किया कि LHS equal to RHS. Okay. So ये क्वेश्चन हो गया. I hope all of you understood this part very well. Now क्वेश्चन नंबर 3 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है. ओके, तो यहाँ पे हमें यूज करनी है एक आइडेंटिटी जो उन्होंने पहले ही दी है. सो देखो क्या दिया है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू हमें प्रूव करना है cosec a प्लस cot a यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a. ओके, तो LHS कंसिडर करेंगे, उसको शो करेंगे हम RHS इक्वल टू RHS प्रूव करेंगे, एंड ऑल्सो वी विल यूज द आइडेंटिटी विच दे हैव ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. सो आई विल राइट कंसिडर cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 equal to cosec a plus cot a. I will give number 1. So LHS consider करूंगी मैं यहाँ पे, therefore consider LHS equal to, so क्या दिया है देखो, cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a plus 1. ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, अगर जब भी हम किसी टर्म को न्यूमरेटर में ऐड करते हैं तो उसको डिनोमिनेटर भी ऐड करना पड़ता है. सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी टर्म से, कोई टर्म न्यूमरेटर से, तो उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है क्योंकि वो बैलेंस हो जाता है. तो इन द सेम में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड करेंगे. थ्रू आउट द लेफ्ट साइड वी विल डिवाइड बाय साइन ए. ओके, सो देखो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे. सो cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस हमें मिल जाता है यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए होल डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे मिलेगा cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन, जस्ट अ मिनट, माइनस है यहाँ पे, सॉरी माइनस. देखो आपको ये जो टर्म्स है वो थोड़ा ध्यान से देखने के क्या दिया है, कहाँ पे माइनस है कहाँ पे प्लस है, क्योंकि आप अगर सॉल्व भी करे हो ठीक से फॉर्मूला यूज करके, लेकिन प्लस माइनस में अगर कोई कंफ्यूजन हो गया, कोई गलत लिख लिया तो पूरा आंसर हमारा गलत आ सकता है. ओके, सो वी नीड टू टेक दैट प्रिकॉशन कि हमारे आंसर जो हमने जो कोई साइंस हमने लिखे वो करेक्ट लिखे है या नहीं. ओके, सो देखो नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या मिलता है. सो आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखो यहाँ पे हमें मिलेगा, मैं फिर से आऊंगी प्रीवियस स्लाइड पे. देखो cos a अपॉन साइन ए हमें मिलेगा cot a माइनस 1 प्लस cosec a. 1 अपॉन साइन ए इज cosec a. तो पहले न्यूमरेटर में लिख के लेती हूँ. देखो क्या मिलेगा, cot a माइनस 1 प्लस cosec a. cot a माइनस 1 प्लस cosec a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मिलेगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a. cot a प्लस 1 माइनस cosec a. सो रीजन में यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि हमने क्या किया, सिंस 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू cosec a
and cos A upon sin A equal to cot A. Okay, so now what we will get in the next step, that is equal to. अब हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिटी यूज करनी, तो कहाँ पे ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं जहाँ पे 1 दिया है। कॉट ए और कोसेक का अब स्क्वायर करके कोई यूज नहीं है, बस 1 जहाँ पे है वहां पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करके 1 के लिए क्या लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोसेक एंड कॉट, दैट वी विल सी। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, पहले मैं कॉट ए प्लस कोसेक ए को मैं एक ब्रैकेट में डालती हूँ और -1 उसको बाद में लिखती हूँ। डिनोमिनेटर आपको जो है वो वैसे ही रखना है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है, वहाँ पे 1 भी है लेकिन उसको वैसे ही रखना है इस स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में भी। ओके, सो देखो हमने जो आइडेंटिटी देखा है यहाँ पे, फिर से मैं लिखती हूँ यहाँ पे, वी हैव द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 का वैल्यू कैसे मिलेगा, कॉट को शिफ्ट करो लेफ्ट साइड पे, सो मिलेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमें यहाँ पे डालना है, यहाँ पे जो 1 है वहाँ पे हमें डालना है। So I will rub that part. I will mention the identity as a reason after writing the next step. So that is equal to हमें मिलता है cot A plus cosec A minus 1 के लिए मैं ब्रैकेट डालती हूँ, सो हमें मिलता है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। डिनोमिनेटर भी हमें लिखना है एज इट इज कॉट ए। इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखते हैं, मतलब थोड़ा सा टर्म्स रीअरेंज करते हैं, 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, सेम टर्म्स लिखे हैं साइन के साथ। ओके, सो रीजन हमें लिखना है स्टेप के लिए, सीन्स कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, सो हमें लिख, अब कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए एंड कोसेक ए माइनस कॉट ए। हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके हम लिख सकते हैं। सेक्स स्क्वायर ब्रैकेट डालती हूँ यहाँ पे और लिखती हूँ कोसेक ए प्लस कॉट ए इनटू कोसेक ए माइनस कॉट ए एंड अगेन होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot A plus minus cosec A. Okay, so I will draw some part. I hope all of you understood up to this step. थोड़ा सा आंसर बड़ा है लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, आपको बस देखना है कि कौन से टर्म के लिए हमें उससे रिलेटेड कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है हमें लेना है। सो वेरी इजी क्वेश्चंस आर देयर, जस्ट वैरायटी जो है वो बहुत है क्वेश्चंस की। ओके, सो हर एक क्वेश्चन कभी कभी जो कुछ क्वेश्चन है हर में अलग अलग तरीका यूज किया जाता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम सेम ही यूज करते हैं, कि उनको यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है ना। देखो प्रीवियस स्टेप में हमें क्या मिल गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स में से हम ये जो टर्म है कोसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले सकते हैं। सो आई विल राइट कॉट ए प्लस, एडिशन इज कम्यूटेटिव, सो कोसेक ए प्लस कॉट ए इज नथिंग बट कॉट ए प्लस कोसेक ए। सो कॉट ए प्लस कोसेक ए इनटू ब्रैकेट, अब क्या रह जाएगा यहाँ पे 1, इसका 1 रह जाएगा, ये वाला जो टर्म है मैंने राइट मार्क किया, इसका 1 रह जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। एम आई राइट? सो क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस इंटू ब्रैकेट 1 माइनस इंटू ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए। देखो मैंने ब्रैकेट क्यों डाला है, क्योंकि ब्रैकेट को ओपन करने के बाद माइनस साइन की वजह से जो ब्रैकेट के अंदर के साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो बहुत केयरफुली आपको जो है वो लिखना है स्टेप्स। इजी तो है क्वेश्चन, स्टेप्स भी लिखने के लिए आपको आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देखें ताकि आपका फाइनल आंसर गलत नहीं आ जाए। सो देखो अब यहाँ पे मिल गया हमें कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब देखो ये जो टर्म है उसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस जो है साइन ब्रैकेट के अंदर जब अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। डिनोमिनेटर में हमें मिलता है 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। तो अगर आपने ये टर्म ऑब्जर्व किया जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, थोड़ा सा फिर से लिखती हूँ, जस्ट वेट। तो क्या मिला है, इनटू हमें मिला है यहाँ पे 1 माइनस, अब ये प्लस हो जाएगा कॉट कोसेक ए माइनस प्लस कॉट ए
डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot A माइनस cosec। अब देखो ये दोनों जो ब्रैकेट्स एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है। टर्म्स को अगर आपने फिर से रीअरेंज किया तो ये वाला टर्म जो है ये वाला, सो आपको मिलता है 1 प्लस cot A माइनस cosec A। तो इसी यहाँ पे हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया इसके साथ। सो व्हाट वी विल गेट cot A प्लस cosec A। सो देखो इज इट राइट साइड फॉर ऑफ द गिवन इक्वेशन? यस, हमें प्रूव करना था cosec A प्लस cot A, अगेन एडिशन इज कम्यूटेटिव, सो cosec A प्लस cot A इज नथिंग बट cot A प्लस cosec A। सो हमें मिल गया, so this is nothing but right hand side। so what we will write in the next step? so just wait। so हमने प्रूव किया है कि गिवन जो इक्वेशन था उसके राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड जो है उनके वैल्यू सेम है, वो इक्वल है, सो दैट इट इज अ आइडेंटिटी। सो यू कैन कंसिडर इट एज अ आइडेंटिटी and it will be true for all values of angle, that is for all values of A। A is the angle present in the given trigonometric ratio, so therefore क्या था हमारे पास cos A minus sin A plus 1 cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1, yes minus 1 equal to cot A plus cosec A, hence proved। ओके, सो इन दिस वे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे सॉल्व किए। सो अब और भी क्वेश्चंस बचे हैं आई नो, सो दोस क्वेश्चंस वी विल डेफिनेटली टेक इन द नेक्स्ट सेशन। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो पूरा आपका ये जो लेसन है ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। हर एक पार्ट के लिए हमने यहाँ पे सेशन लिया है और ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर सॉल्व रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो आज के सेशन में यही रुकते हैं। अगर आपको ये आज का मेरा सेशन अच्छा लगा हो, आपके पढ़ाई में हेल्पफुल लग रहा हो, आपके लिए यूजफुल लग रहा हो, तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि जो भी कोई नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड होता है आपके स्टडी से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपके कोई क्वेरीज है और सजेशंस भी है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हो। सो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर ऑल क्वेरीज और योर डाउट्स। सो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, खुद का ख्याल रखो, नेक्स्ट सेशन में जरूर मिलेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय एंड टेक केयर।